السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی. ناظرین, ویسے تو پورے ملک میں شدید گیس کا بحران ہے, لیکن کراچی شہر کی عوام زیادہ پس رہے ہیں. عوام کہتے ہیں کہ جو بتایا گیا ہے کہ صبح دوپہر شام کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی, وہ گیس بھی فراہم نہیں کی جا رہی. آج کے پروگرام میں چلتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ عوام کی کیا شکایات ہیں, آیا کہ جو انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے اس حساب سے گیس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اولین ترجیح ہے انتظامیہ کی جو بتایا گیا کہ گھریلو صارفین کو گیس فراہم کی جائے گی. سی این جی اسٹیشنز تک بند کر دیے گئے. انڈسٹریز کی کیا صورتحال ہے, گلی محلوں میں مکین کس حد تک اس بحران میں اذیت کا شکار ہے. آئیے چلتے ہیں شہر کے مختلف مقامات پر, ان مقامات پر شہریوں کی کیا شکایات ہیں گیس کو لے کر, وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں, یہ جان لیتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں. اورنگی ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے مجاہد کالونی. اس علاقے میں بھی شدید گیس کا بحران جو ہے وہ شہریوں کو اس کا سامنا ہے. صبح کے اوقات سے جو ہے اس علاقے میں بھی گیس چلی جاتی ہے اور شام کب آتی ہے کچھ نہیں پتا, اور اگر آتی بھی ہے تو مکینوں کی یہی شکایت موصول ہو رہی تھی کہ ہلکی آنچ پہ کچھ نہیں پک پاتا. یہاں کے بھی کچھ مکین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب ہم یہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے پہنچے تو شہریوں نے اپنی شکایتیں جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ گیس کی کیا صورتحال ہے. کچھ شہری بھی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ کیا پریشانی ہے گیس کو لے کے, کتنے عرصے سے یہ گیس کا جو مسئلہ ہے اس علاقے میں موجود ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتائیے گا کب سے گیس کا جو ہے وہ قلت کا سامنا ہے اس علاقے میں؟ یہ تقریباً آج سے 2 مہینے ہو گئے اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. بچے جو ہے وہ صبح اسی طرح اسکول چلے جاتے ہیں, ناشتہ نہیں کرتے ہیں, پھر دوپہر کا کھانا بھی اسی طرح ہوتا ہے, شام کا بھی اسی طرح ہوتا ہے, اور اوٹ لینے کے لیے ہر ایک آ جاتا ہے. جس وقت اوٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر کام کوئی نہیں کرتا ہے. یہ یہاں الواجد ٹاؤن ہو گیا, مجاہد کالونی ہو گئی, مکہ بستی ہو گئی, یعنی کہ پورے اس علاقہ کراچی ویسٹ کے اندر یہی پرابلم چل رہا ہے. کیسے گزارا ہو رہا ہے بغیر گیس کے؟ دیکھیں, جس طرح یہ سارے بھائی پریشان ہیں اس طرح ہمیں بھی پریشانی ہے. جب ناشتے اور کھانے کی باری آتی ہے تو ہمارے بچے بغیر کھانے کے اور بغیر ناشتے کے اسکول کو جا رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر اس کے علاوہ گیس اگر کسی ٹائم آتی ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم کھانے وانے پہلے سے تو بنا کے نہیں رکھ سکتے نا. اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہونی چاہیے کہ یار آپ کو اس ٹائم گیس ملے گی, آپ اسی ٹائم پکا لیا کریں. اس کے علاوہ بلنگ کی جو مسئلہ ہے, عام گیس مہنگے ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر پہ بل, میں کرایہ دار ہوں, 5,000 کا میرا بل آ گیا ہے, جبکہ میں مشین بھی نہیں یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. بہت سے گھر ایسے جو مشین لگا کے گیس استعمال کرتے ہیں, اب مشین لگانے کے بعد بھی گیس نہیں آ رہی ہے, ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, مجھے آپ بتائیے گا بھائی کہ کھانے پینے کا نظام گھر میں کیسا چل رہا ہے؟ بعض اوقات جو ہے نا, آپ بلیو کریں کہ میرے بچے بغیر ناشتے کے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گیس نہیں ہوتی صبح, اور صبح 6 بجے سے 7 بجے تک ہوتی ہے, لیکن اس وقت جب سب سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم تھوڑا پریشر صحیح ہوتا ہے. اس کے بعد سے انٹل 3 o'clock گیس بالکل نہیں ہوتی, نہ ہونے کے بعد پریشر ہوتا ہی نہیں ہے. اور اس سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہوں گا, ہماری مثال, ہم پاکستانی عوام کی مثال جو ہے نا کنویں میں مینڈک کی طرح ہے. ہمیں کنویں میں ڈال دیا گیا ہے کہ اس کنویں میں ہی آپ گھومو, سمندر ہمیں نہیں دکھایا جا رہا. ہماری بیسک رائٹس جو ہیں وہ, چاہے وفاقی حکومت ہے چاہے صوبائی حکومت ہے, وہ اس میں بالکل فیل ہے. میں یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے. اچھا حاجی صاحب, مجھے آپ بتائیے گا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہیں میری رہائش ہے, میری یہاں پہ شاپ ہے. یہاں مسائل کتنا کما کتنا لیتے ہیں آپ مہینے کا؟ بس یہ تو مت پوچھے, جو حالات اتنا تنگ ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں کیسے, بچوں کی ٹیوشن کی فیس کیسے بھریں, یہ تو بہت پریشانی ہے, بہت ہی پریشانی. اچھا, اس سب صورتحال میں گیس کے بھی بحران کا سامنا ہے آپ کو, تو مہنگائی کی وجہ سے ویسے ہی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, اب گیس کے بحران کی وجہ سے سامان پکا ہوا بازار سے لانا پڑ رہا ہے. بالکل جی, یہ ابھی دیکھیں تندور جل رہا ہے, یہاں پہ لوگ اپنے گھر سے آٹا بنا کے آئیں گے یہاں سے روٹی بنوانے کے لیے. یہاں ایک لمبی لائن لگی ہوگی, ٹھیک ہے, کئی دیر تک بچے کھڑے رہتے ہیں, فیملی کھڑے رہتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ لیڈیز یہاں لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے. گیس نہیں ہے پہلے سے, یہاں کئی سالوں سے پتہ نہیں کتنا عرصہ اور یہاں پانی نہیں ہے. اچھا حاجی صاحب, مجھے آپ بتائیے گا گیس کی قلت کا آپ
کے علاقے میں سامنا ہے, کتنی مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ جی میرے بھائی ادھر جو بجلی اور گیس کا دونوں کا مسئلہ ہے, اور بجلی کا جو ہے بل اور پانی کا بھی مسئلہ ہے, اور بجلی کا اور پانی کا اور اس کا گیس کا بل پورا آتا ہے, لیکن گیس بجلی ہے نہیں. تو صبح کا ناشتہ مل پا رہا ہے آپ کو یا نہیں, بازار سے کرنا پڑتا ہے؟ بازار سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ادھر پانی کا بھی تکلیف ہے, گیس کا بھی تکلیف ہے, بجلی کا بھی تکلیف ہے. اچھا بھائی مجھے آپ بتائیے گا کہ گھر میں جو ہے خواتین کو گیس کی مشکلات میں جو ہے نا کافی مسائل درپیش ہوں گے, تو کتنے ٹائم کا کھانا جو ہے وہ بازار سے لانا پڑ رہا ہے, کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اب گھر سے بازار چلی گئی؟ سب سے پہلے صبح کا تو تھوڑا بہت ہوتا ہے, دوپہر کو تو بالکل گیس نہیں ہوتی بھائی, روٹی اور سالن دونوں بازار سے منگوانا پڑتا ہے, ایسے شام کا بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی مہمان غلطی سے آ جائے تو بس بیٹا رہتا ہے بھائی, کوئی ہوتا نہیں. اگر چائے بنانے میں کوئی پتیلی رکھ تقریباً 3 گھنٹے چائے بنانے میں لگتے ہیں بھائی, آپ خود سوچیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہ صورتحال ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی. ان علاقوں میں جو ہے جس طرح گیس کی قلت کا سامنا ہے اور بھی جو مسائل ہیں اس سے بھی شہری جو ہے وہ اپنی شکایتیں درج کرا رہے تھے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کی صورتحال یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقوں میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ساتھ ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بھی صورتحال کچھ یوں ہی ہے کہ شہری جو ہے وہ گیس کو ترس رہے ہیں. صبح سے جو گیس جاتی ہے تو رات کے کسی پہر جو ہے اس علاقے میں بھی ایسے ہی شکایات موصول ہو رہی ہیں. شہری پریشان ہیں کہ گیس کے بل آ رہے ہیں لیکن گیس نہیں آ رہی. شہر کے CNG اسٹیشنز بھی بند ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گھریلو صارفین کو گیس نہیں دی جا رہی. اس علاقے میں شہریوں کو کس حد تک گیس کی مشکلات کا سامنا ہے, یہاں کے شہریوں سے بھی بات کر لیتے ہیں, جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا گیس کی قلت کا کس حد تک سامنا ہے, کس وقت آتی ہے کس وقت نہیں آتی؟ کسی بھی ٹائم پہ نہیں آ رہی, 1 مہینہ ہو گیا پورا. صحیح ہے, سلنڈر جلا رہے ہیں, وہ LPG لے کے آتے ہیں 220 روپے کلو, وہ جلا لیتے ہیں بھائی, اور تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو گزارا کیسے ہو رہا ہے, صبح بچے اسکول کیسے جا رہے ہیں, ناشتہ کھانا؟ LPG گیس جو آتی ہے سلنڈر کے اندر, اسی سے سارا سسٹم ہمارا چل رہا ہے. تقریباً 1 مہینہ ہو گیا جو ٹائمنگ کے حساب سے عمران خان نے بولی تھی تبدیلی سرکار نے, تو وہ ذرا سی بھی گیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بل آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, 1 مہینے سے گیس نہیں آئی آپ کے یہاں؟ ایک بل تو ہمارا پراپر آ رہا ہے, جو ہر منتھلی آتا ہے اس حساب سے پورا ہے. لکڑیوں پہ گزارا کر رہے ہیں, بہت مشکل کے ساتھ, بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا صاحب. اور کوئی افسر سننے کے تیار نہیں ہے گیس کے لیے کہ کوئی بات سنیں کہ گیس کیوں نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے, کوئی سننے کی تیار ہی نہیں ہے. بہت زیادہ پریشانی ہے. گیس کے دفتر بھی جا چکے ہیں. گھر میں بن رہا ہے ناشتہ, لکڑیوں پہ بنا رہے ہیں, اور گیس تو بالکل نہیں آ رہی. تقریباً 15 دن مہینہ ہو گیا, اور اس میں گیس میں موٹر لگائی تو اس میں پانی بھرا ہوا ہے پوری لائن میں. 15 منٹ تک 20 منٹ تک موٹر چلتی رہی, پانی نکلتا ہی رہا, بند ہی نہیں ہوا. آخرکار ہم نے کہا بجلی کا بھی بل کیوں بڑھا ہے, تو وہ پھر ہم نے موٹر بند کر دی, اور پانی بالکل بھی گیس ساں بالکل بھی نہیں ہے. سب کچھ لکڑیوں کے اوپر ہو رہا ہے. گیس تو سمجھ لو بالکل ناپید ہوئی ہوئی ہے, حالانکہ 50 سال پرانی آبادی ہے. ڈسٹرکٹ اس کی UC2 ہے, پوری کراچی میں اس کا ایک مقام ہے منظور کالونی. ایشیا کی سب سے بڑی فرنیچر مارکیٹ ہے یہ, اور پوش علاقہ ہے یہ. کم سے کم 30 سے 40 لاکھ کی آبادی ہے یہاں پر, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن کو ووٹ دیا تھا ان سے کبھی شکایت کی؟ سوئی گیس تو نہیں سنتی. سوئی گیس نے حالانکہ اعلامیہ بھی جاری کیا صبح دوپہر شام کا. سر یہ سعید غنی صاحب کا حلقہ ہے, تو آپ کے چینل کے توسط سے میں گزارش کروں گا وہ ذرا اپنے حلقے کی بھی خبر لے لیں. جس طریقے سے اپنی پارٹی اور اپنے لیڈران کا دفاع کرتے ہیں, اس طریقے سے اپنے حلقے کا بھی دفاع کریں. ان کو معلوم ہونا چاہیے, اول تو معلوم ہی نہیں ہے ان کو, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے. وہ ہمیشہ سے ووٹ لینے کے بعد دوبارہ آتے نہیں ہیں. آپ روڈوں کی سیوریج کا حال دیکھ لیں, ساری لائنوں کے اندر سیوریج کا پانی بھرا ہوا ہے. گھروں کے اندر پورے رنگ و روغن جو نا کالا پیلا ہو گیا ہے, پورے گھر میں دھواں ہوتا ہے, ہر گھر سے دھواں آ رہا ہوتا ہے. چھتیں کالی پڑ گئی ہیں, اتنا جو ہے نا وہ لکڑیاں جلا جلا کر. سر میں مزدور آدمی ہوں, میں کوئی بزنس مین تو ہوں نہیں. میرا بیٹا تھیلوسیمیا کا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں 220 روپے کلو گیس ہے. اب مجھے یہ بتائیں 700-800 دیہڑی والا گیس بھرے گا, لکڑیاں یہاں نہیں ملتی. فرنیچر والوں کے پاس بھی صاف ظاہر بندہ جاتا ہے, محنت کرتا ہے, 2-4 ٹکڑے دے دیے. بند گھر ہے ہمارا, وہ کھلا گھر نہیں ہے, بند گھر ہے. اس کے اندر سانس لینا بھی عذاب ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اذان کی آواز بھی نہیں آتی, تو دھواں کہاں سے باہر جائے گا. لیکن گیس یہاں نہیں ہے. میٹر
के अंदर पानी इतना आ गया कि अगर उसको खोल भी तो गंदी बदबू आती है, गैस की बदबू नहीं आती, गटर की बदबू आ रही है। तो ये गैस के मीटरों में जो है वो पानी कहाँ से आ गया? सर ये लाइन बिस्मिल्लाह पुल है, यहाँ पे इन्होंने पुल बनाया, वो लाइन तोड़ दी गई थी, तो उसके जरिए जो है पानी अंदर आ गया, उन्होंने कनेक्शन कर दिया, पानी नहीं निकाला। बगैर नाश्ते के काम पे जाते हैं, कोई गैस नहीं, आप चल के देख लें, पैप निकाल के फेंके हुए, सूंघ के देखते हैं कि गैस आ रही है नहीं आ रही है, और लकड़ियों के बंडल बांध के रखे हुए चूल्हे आप देख सकते हैं, आपको मैं चल के विजिट करा देता हूँ। ठीक है, लकड़ी क्या हिसाब मिल रही है? लकड़ी ऐसी लाते हैं कारखानों में से उठा के, कहीं से मोल लाते हैं, गैस पे कुछ सिलेंडर से गुजारा करें, कुछ लकड़ियों से। तो कितना महीने का क्या कमाते हैं? क्या कमा 30,000 रुपए सैलरी, उसमें से अब क्या आप खुद अंदाजा लगाएं, रोजाना के 400-500 रुपए तो गैस में लग जाए अगर गैस जलाएं। और कितने टाइम का खाना आप बाजार से लाए? बाजार से सुबह का नाश्ता बाजार से आ रहा है बच्चों का, और जो है कि दोपहर का खाना तो खाते ही नहीं है, बस शाम में ही बनता है जो भी। रात को गैस पूरी आ रही है? नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं पैप में देख दिखा देता हूँ। मैं गैस के दफ्तर आया अभी, वो गाड़ी वाले आए हैं, वो तो खड्डा निकल, गैस टूटी है, वो गाड़ी आई है, गाड़ी देख के वापस चले, हम शाम को आएंगे। हमारे बच्चे बेचारे बेजार हैं, मैं तो बड़ा हूँ लेकिन बच्चों को कहाँ से नलाएंगे, ठंडा पानी है, बोल बोल के थक के कोई नहीं सुनता। अभी मैं आखिर गैस के दफ्तर गया, खुद गया हूँ, वहाँ रिपोर्ट करा के आया हूँ। लकड़ी और रोटी पका रहे हैं, अभी मैं गया, मेरी लड़की रहती है, चूल्हा रख रहे बलाग, उस पर रोटी पका रही है, खाना पका रही है, कितनी परेशानी है। और गैस है जो इलाके में और बंद कर रखे है, परेशानी है ना, ये लोग तो परेशान है ना, क्या बनाओगे बंद करके, उसका क्या करेंगे? जो इमाम के लिए लगा है वो नहीं खोलेंगे तो वे क्या करेंगे उसका? नाज़रीन, ये सूरत हाल इलाके की, मंजूर कॉलोनी का जो इलाका है, यहाँ पे कारखानों से लकड़ी जमा की जा रही है और उसके बाद घर में जलाने के बाद गुजारा हो रहा है। सुबह का नाश्ता अगर बन सकता है, या दोपहर का खाना, रात का खाना। जिस तरह इंतजामिया ने कहा था कि सुबह दोपहर शाम जो है वो गैस फराम की जाएगी, तो इस इलाके में भी ना तो सुबह गैस है, ना दोपहर को गैस है और ना शाम को गैस है। जो मजदूर तबका है उसकी बिल्कुल देखा जा सकता है कि कमर जो है वो टूट चुकी है। 220 रुपए LPG किलो में गैस मिल रही है। उसके अलावा दूसरा हल जो है वो लकड़ी जलाने का, लेकिन लकड़ी जलाने से जो नुकसानात हैं वो भी शहरी बता रहे थे कि दीवारें तक काली पड़ गई हैं, किरायों के मकान हैं, मालिक मकान अलग तंग करते हैं। घरों में क्या सूरत हाल है लकड़ी जलाने के बाइस, आइए आपको भी दिखाते हैं। इस तरह से जो है वो गुजारा किया जा रहा है कि ईंटें लगा के ये चूल्हे बनाए हुए हैं, यहाँ पर लकड़ियां जमा करके इन लकड़ियों में आग लगा के जो है वो खाना पकाया जा रहा है, जिसके बाइस जो है वो दीवारें जल रही हैं, दीवारों के रंग खराब हो रहे हैं, बच्चों में जो है वो तरह तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, धुआं उठ रहा है, पूरे घर में फैल रहा है। इसके बाइस जो है वो बेशुमार सिर्फ गैस के ना आने से मसाइल का जो है वो शहरी परेशान है। ये खवातीन कुछ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अच्छा आंटी, मुझे बताइएगा कि गैस नहीं आ रही है, कितनी मुश्किलात का सामना है? बहुत मुश्किलात का सामना है, हाथ फट गए, सब कुछ होगा भैया, जल भून गए हम तो, सारी मुश्किलात हुई पड़ी है, खाने की, पीने की, चाय की, सबकी हुई पड़ी है। तो अब क्या खाना पीना भी बाजार से ला रहे हैं आप लोग? बाजार से ला रहे हैं और कुछ घर में बना रहे हैं, लकड़ियों पे लकड़ियाँ नहीं दे रहे लोग बाग, हमें कारखानों में से भी ना टाल पैसे। ठीक है, गैस तो जो LPG है वो 220 रुपए किलो है, वो वैसे ही खरीद सकते हैं, गरीब आदमी हम कहाँ से खरीदेंगे, हमारे 5-5, 6-6 बच्चे हैं। ठीक है, बिल कितना आता था गैस का? बिल तो भैया 500 भी आ जाए, 600 भी आ जाए, 1000 भी आ जाए। अभी गैस के ना होने पे भी आ रहा है? अब गैस के ना होने पे भी आ रहा है, अभी भरा है हमने बिल। ठीक है, तो सुबह के नाश्ते का इंतजाम जो है वो लकड़ियां जला के हो रहा है? लकड़ियां, सब लकड़ियां जला रहे हैं। दीवारें जो है वो काली हैं और ये सूरत हाल हो गई है कि गैस ना आने के बायस जो है लोगों ने चूल्हे बनाए हैं और इस तरह लकड़ियां जलाई जा रही हैं। जो खाना 15 मिनट में पकता था, अब वही खाना जो है 2 घंटे में सिर्फ पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि गैस के ना आने के बायस जो है ये सारे मुश्किलात का सामना है। लकड़ियां लोगों के घरों में जो है वो जहां से मिल रही है, इस वक्त लकड़ी भी नायाब हो गई है, तो फर्नीचर मार्केटों से जगह जगह से जो है वो लकड़ियां जमा करके शहरी लेकर आ रहे हैं, अपने घरों में खवातीन को दे रहे हैं, ताकि 2 वक्त की रोटी जो है वो कम से कम जो है इस सूरत हाल में बन सके। महंगाई का दौर है, बाजार से हर शख्स जो है वो खाना खरीद के नहीं खा पा रहा है। यहाँ पर भी भाई से बात करते हैं जिनका घर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल आप फेस कर रहे हैं गैस के ना आने से? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल भाई। 1500-1000 रुपए रोज कमाते हैं, 220 रुपए किलो CNG है। अब 1 किलो CNG में बच्चों का दूध लेकर आए, CNG लेकर आए, खाने के लिए करें क्या करें, बहुत मुश्किल आते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये लकड़ी जो है ये कहाँ से जमा कर लेते हैं? ये लकड़ियाँ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं, फिर कोई कहीं हम चले जाते हैं, वहाँ से फिर जमा करके ले आते हैं। ठीक है, तो खवातीन जो है कितना टाइम ले रही हैं अब खाना बनाने में, क्योंकि गैस तो नहीं आ पा रही, इससे पूरी आंच नहीं मिलती होगी? तकरीबन भाई सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, तो 8 बजे घर से निकलते हैं नाश्ता करके। 2-2.5 घंटे खाने पीने में लगते हैं हमारे। सूरत हाल ये है कि नाश्ता जो 10 से 15 मिनट में मिल जाया करता था घर में, अब खवातीन को वही नाश्ता बनाने में 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि लकड़ी आती है, लकड़ी जलती है और वो आंच पूरी नहीं मिल पाती, जिसके बायस इसमें भी ताखीर है, नौकरियों पे ताखीर से जा रहे हैं, वहाँ पे भी तरह तरह के जो है मसाइल जो है वो शहरी फेस कर रहे हैं। गैस ने जो है वो जिंदगी शहरियों की कराची शहर के अजीरन कर रखी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मुकम्मल तौर पे सुबह, दोपहर, शाम 3 खाने के टाइम पे जो है वो गैस शहरियों को मिल रही हो। तीनों टाइम पे गैस नहीं है। सुबह जो गैस जा रही है तो रात के किसी पहर आ रही है और वो भी आंच पूरी नहीं हो रही है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। नाज़रीन, घरेलू सार्फिन की क्या शिकायत हैं गैस की किल्लत को लेके, ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम गए और वहाँ पे शहरियों से बात की और सूरत हाल इंतजामिया को दिखाने की एक कोशिश की। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज की, कि कराची जो कि मईशत का पहिया चलाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट इस तमाम तर सूरत हाल से किस हद तक मुतासिर हुए हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए जी, मैं आपको बताऊँ एक बात कि ये तो आप हमारे दिलों से पूछो इंडस्ट्रियलिस्ट के, और खास करके साइड के लोगों से, कि कैसे चल रहा है। घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। सिलेंडर के लिए लोग जो है ना 3-3 घंटे लाइनों में लगे हुए हैं, वहाँ भी रेट बढ़ा दिए हैं। और इंडस्ट्री में ये हाल है कि पिछले महीने की 11 तारीख से 11 नवंबर से हमारे पास, आप समझ लो कि टोटल 40% जो है ना वो हमारी फैक्ट्री चल रही है। सुबह से लेके रात के 11-12 बजे तक ये हमारी फैक्ट्री बंद होती है। इसके बाद 12 बजे के बाद प्रेशर आता है, सुबह 6-7 बजे तक जो है ना 8 बजे तक वो फैक्ट्री चलती है। इसके बाद फिर गैस, और अब तो आजकल ऐसा हो गया है, मुझे तो ये ताजुब हो रहा है कि जब इन्होंने अदर इंडस्ट्रीज, हालांकि इन्होंने वो भी ज्यादती की है, अदर इंडस्ट्रीज जो बंद की है वो भी ज्यादती की है। अदर इंडस्ट्रीज बंद करने के बाद भी जो है ना वो ये है कि अब तो बिल्कुल जीरो, अभी अब मैं आपको चल के दिखाऊं, क्या मेरे आप देखेंगे तो 0 मीटर दिखा रहा है गैस, 0 मीटर, मतलब गैस है ही नहीं। इस तरह से जैसे पीछे से कोई आप वाल तो छोड़ दे, इलेक्ट्रिक का स्विच ऑफ कर देता कि करंट ना आए, इस तरीके से बिल्कुल गैस की पोजीशन है। बहुत बुरा हाल है। और मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से है, इसमें अगर चंद दिन और अगर ये हाल रहा, 2-4 दिन 8 दिन अगर इस तरह से रहा और गैस, तो इंडस्ट्री वाले जो है ना वो अपने लेबरों को फारिग करना शुरू कर देंगे। बट नाउ वी हैव नो चॉइस कि या तो हम सड़कों पे बैठ जाएं या हम जो है ना अपने लोगों को निकाल दें। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात मानने वाला नहीं है, आगे देखने वाला नहीं है। इमरान प्राइम मिनिस्टर आपको अपने इनके मिनिस्टर्स पता नहीं क्या खबरें देते हैं, किस तरह से अच्छा बताते हैं या क्या है, या वो उनको बताते हैं कि ये पोजीशन है, फिर भी उनको कोई वो फिक्र नहीं हो रही है। यहाँ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, वहाँ उनको भी बातें करते हैं मगर प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हो रहा। वैसे आप देखो तो 18 अमेंडमेंट की बात करते हैं कि जी ये सूबे में कोई इख्तियार मिल गई, ये सूबा काम करेगा, और जो इनको अपने हिसाब से अपने जो चीज़ चाहिए उस वक्त इनको 18 अमेंडमेंट याद नहीं आती, पता नहीं चलता कि क्या है। और गैस का जो सिंध जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है उसमें गैस नहीं है, तो लीगली भी हमारा राइट बनता है। मगर कराची के साथ आपने देखा है, कराची में हर चीज़ में कराची के साथ जो जुल्म किया गया है और कराची को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि नाउ इनफ इज इनफ। गलत फिगर्स देते हैं इनके जो मिनिस्टर्स हैं, और सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं ऑलराउंडर हैं। आज किसी को आप डिफेंस में बना दो, कल उसको वजीर खजाना भी बन जाएगा, वो तीसरे दिन जो है ना वो वजीर बल्दियात भी बन जाएगा, चौथे दिन उसको तो तजुर्बा है वजीर ज़राअत भी बन जाएगा। इनके पास टीम भी मुझे लगता है इस टीम है कि वो सारे मिनिस्टर जो है बहुत ज़्यादा अकले पुल हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कराची जो है ना 54% एक्सपोर्ट में कराची का हिस्सा है, 67% रेवेन्यू कराची से जाता है। SRB का सिंध बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड का जो टैक्स जो है वो 97-98% कराची से जा रहा है।
नाज़रीन, आइए अब चलते हैं लियाकत आबाद की जानिब, जिसके हवाले से कहा जाता है कि जितना लियाकत आबाद टैक्स देता है उतना पूरा लाहौर भी टैक्स नहीं देता। आया कि लियाकत आबाद का इतना टैक्स देने के बावजूद भी लियाकत आबाद की आवाम इस गैस के बहरान के हवाले से क्या कहती है, आइए जान लेते हैं। मेरे घर में 3 महीने से गैस नहीं है और ये मैं सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे ये रखा हुआ। 3 महीने से गैस नहीं आ रही और आती है चली जाती है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है गैस हमारे यहाँ। अच्छा, आप हमें थोड़ा जला के दिखाएंगी कि गैस की क्या सूरत हाल है, कि गैस आ रही है या नहीं आ रही है आपके घर में। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इन इलाकों में जो है वो कि गैस जो है वो 2-2 महीनों से 3-3 महीनों से नहीं आ रही, और इस कंडीशन में जो है वो मजबूर है, ना तो चाय पक पा रही है ना खाना पक पा रहा है। सिलेंडर में जो है ये खाना जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो आंटी, आप सिलेंडर में पका रही हैं तो कितना इजाफा हो गया अखराजात में और कितनी मुश्किलात है? भाई बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि 700 रुपए की गैस बढ़ती है, एक हफ्ता भी नहीं चलती है, समझे 4-5 दिन चलती है, वो भी खत्म हो जाती है, फिर हमें भरवानी पड़ती है। बहुत मसला हो गया, बहुत परेशानी हो रही है। गैस यही है बस, के अलावा हमारे पास गैस नहीं है, हमें बहुत परेशानी है। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि हर घर में जो है वो सिलेंडर नजर आ रहा है, जिसके बायस जो है जब इसकी खरीदारी में इजाफा हुआ तो गैस तो 220 रुपए किलो LPG वैसे ही हो गई है, सिलेंडरों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। घंटों घंटों जो है वो किचन में लोग खड़े, लेकिन गैस के मुंतज़िर हैं, गैस नहीं आती है। 2 महीने में तभी अरसा हो गया, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं सिलेंडर से काम चला रहे हैं, इससे बर्तन भी काले जाते हैं, गैस बहुत महंगी पड़ती है। ये एतवार को आई थी 8:15 बजे, 10:30 बजे, जब से बिल्कुल नहीं आ रही है। 48 घंटे हो गए जब से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, 2 महीने से आप सफर कर रहे हैं गैस की परेशानी में, बिल कितना आ रहा है? देखिए, गैस 2 महीने से नहीं, फिर बिल और बढ़कर आया बिल। ये देखें, ये लगाए हुए ना चूल्हे, हमने ये लगाया हुआ है, वो बिजली का चूल्हा है, उस पर गरम करते हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। गैस के चूल्हे हैं तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक के चूल्हे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तरीक़ेकार ये हो गया है कि खाना तो पकाना है, बाजार से हर वक्त खाना नहीं लाया जा सकता, जिसके बायस या तो LPG जलाई जा रही है 220 रुपए किलो वाली, या तो इलेक्ट्रिक के चूल्हे लगा लिए गए हैं घर पे, उसकी मदद से जो है किसी हद तक गुजारा किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बिलों में भी फिर गैस के साथ बिजली के बिलों में भी इजाफा हो जाएगा। गैस 2 महीने से बंद है, कंप्लेनें कर रहे हैं, सबको कंप्लेन कर दी, कोई कंप्लेन वाला नहीं आ रहा, कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा। कचरा निकलवा रहे हैं, उन्होंने बोला थी कचरा निकलवा दो। 2 महीने से कचरा निकला हुआ है, 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया कचरा निकालने पे। बल्कि गैस सिलेंडर डाला है, करें गुजारा, और कैसे सब लोग ऐसे कर रहे हैं, सिलेंडर डाला के इनके भाई गाँव भी ऐसे हो रहा है। बहुत परेशानी है। बिजली गैस का बिल अगर 700-800 रुपये आता है तो तकरीबन 3,000-3,200 रुपये की हमें गैस डलवानी पड़ रही है। इस टाइम गैस के इन्होंने नर्क बढ़ा के 220 रुपये कर दी है। बहुत परेशानी है, और इतना वो परेशानी है कि खाना पकते पकते एकदम गैस खत्म हो जाती है। बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, पता चला चाय बनाने रखी, गैस खत्म, अब वो गैस वाले को ढूंढते फिर कौन सी दुकान के लिए कहाँ से भरवाएं। तो वो तो अभी भी कहना घबराना नहीं है, हम लोग घबरा नहीं रहे, लेकिन परेशान जरूर है बहुत। नाज़रीन, गैस का मसला है कराची शहर के किसी एक मखसूस इलाके में नहीं, पूरे कराची की आवाम जो है वो गैस की किल्लत को रो रही है। गैस है कि आने का नाम ही नहीं लेती, जिसके बायस तरह तरह के टोटके और तरीकों से जो है वो घर के खाने पकाए जा रहे हैं, क्योंकि हर शख्स जो है वो शहर से, बाजार से, दुकानों से, होटलों से बना हुआ खाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। वैसे ही महंगाई है, ऊपर से गैस की किल्लत का सामना है, तो कुछ दुकानों पे एक नए किस्म के जो है वो चूल्हे भी मुतारिफ कराए गए हैं। ये वो चूल्हे हैं जो कि गैस की शदीद लोड शेडिंग के बायस जो है वो दुकानदारों ने बना के तैयार किए हैं। इसमें कोयला और लकड़ी जो है वो जलाई जाती है और उसके बाद जो है वो इसमें खाना पकाया जा रहा है। ये सूरत हाल है जो कि गैस के बहरान के बायस जो है वो पेश आई है, और लोगों ने तरह तरह के चूल्हे और तरीके इजाद कर ली हैं ताकि घरेलू सार्फिन जो है, जो बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने घर में ही किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ पका सके। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा चूल्हा आपने बनाया, तैयार किया? बनाया ये। अच्छा, ये क्या वजह क्या है और कितनी इसकी जो है वो बिक्री हो रही है? बिक्री तकरीबन 10, 15, 20 डेली जो है ना ये बिक रहे हैं, और महंगाई का आलम है, लोग बड़ा परेशान होके आते हैं। ये आपके पीछे ये कोला भी है, ये कोला भी जो है ना लोग खरीद रहे हैं, और कोले से लोग जो है ना दोपहर का, सुबह का नाश्ता जो है ना करते हैं, दोपहर का खाना करते हैं। लोग बहुत परेशान हैं गैस की वजह से। ये तकरीबन 500 रुपये लागत आ रही है, 550 तक ये जो है ना फरोख्त हो रहा है, 600 तक फरोख्त हो रहा है। ये 15 से 20 दिन चलता है, इससे ज्यादा जो है ना ये खराब हो जाता है। हल्की चादर का बना हुआ है, चादर महंगी है,
इसलिए जो है ना नहीं इतने नहीं चलता। नाज़रीन, कराची शहर के इलाकों में सूरत हाल ये है कि गैस की लाइनों में गैस तो नहीं है, लेकिन पानी जरूर आ रहा है, जो कि पानी की लाइनों में नहीं आ रहा है। ये इस वक्त गैस की लाइन निकल रही है, जिसमें शहरी जो है गैस की किल्लत का जिनको सामना है वो यहाँ पर पहले पानी निकालते हैं, मोटर लगाने के बाद ये गैस की लाइन से जो है ये पानी निकल रहा है। जिसको पानी की लाइन में आना चाहिए वो चीज जो है वो गैस के पाइपों से निकल रही है। इस तरीके से जो है वो पहले तो गैस की लाइनें क्लियर की जा रही हैं और उसके बाद जो है वो गैस फिर भी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं जो गैस के लाइनों से निकाला जा रहा है, इतनी रफ्तार में जो है इन इलाकों में पानी जो है वो पानी की लाइनों में भी नहीं आता। ये सूरत हाल है। कराची में बेशुमार इलाकों से ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि गैस की लाइनों में, मीटरों में जो है वो पानी भर चुका है, जिसके बायस जो है वो गैस यहाँ पर नहीं आ रही है। तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखा रहे हैं कि गैस की लाइनों में जो है कराची शहर में पानी आना शुरू हो गया है और पानी निकाला जाता है उसके बाद के गैस आना लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आती। आंटी, गैस की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? इसके नाम के हमें 7-8 महीने से उनके दफ्तर जा के थक गए। यहाँ पर यही मसला है, न गैस है, पानी की भी अब रुकावट हो रही है। तो पानी तो आपको गैस की लाइन में मिल रहा है, तो ये गंदा पिए, हमारा ही मुल्क और हम ही गंदा पिए, हमारा कराची हम ही गंदा पिए, ये कहाँ का इंसाफ है? अब गैस नहीं आ रही तो खाना कैसे पका रही है घर में? लकड़ी के चूल्हे पे। आज चल के देखे जरा, धुआं जो उठ रहा है उससे भी बीमारियां फैल रही होंगी, बच्चे परेशान। खुद वहाँ नहीं बैठ सकता अपने घर के कमरे में, आप चल के देखे जरा। आगे जब मैं दिखाऊंगा, मैं आया इसीलिए कि मैं आपसे कहूँ कि आओ मेरे घर देखो। ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। शहरी जो है वो गैस के ना आने पे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से जो वक्त बताया गया है कि इस टाइमिंग्स में जो है वो गैस की किल्लत का मुल्क को सामना है, लेकिन सुबह दोपहर शाम के औकात में जो है वो गैस फराम की जाएगी, तो उस टाइमिंग्स में भी कराची में गैस फराम नहीं की जा रही है। CNG स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए ताकि घरेलू सार्फिन को गैस दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी गैस नहीं आ रही। और ये पानी अभी आप देख रहे हैं मुसलसल, जितनी देर से ये मोटर चल रही है मुसलसल जो है वो पानी निकल रहा है इन गैस की लाइनों से, और ये पानी, गंदा पानी जो है वो लाइनों में मिल चुका है, जो कि गैस के मीटर में चढ़ जाता है पानी और उसके बाद गैस भी नहीं आती और ये गंदा पानी मुसलसल निकलता रहता है। जब तक ये सारा पानी साफ नहीं होगा उस वक्त तक गैस अगर छोड़ी भी जाती है तो नहीं आएगी, क्योंकि लाइनों में तमाम जो है वो पानी मौजूद है। इस पानी को निकालने के लिए एक और बोझ आवाम पे आ गया है कि बिजली से ये मोटर चलाएंगे और पानी साफ करेंगे और उसके बाद जो है वो शहरी सिर्फ और सिर्फ जो महीने में कमाएंगे वो सारा पैसा जो है वो मजदूर तबके का बिलों की नजर होता हुआ नजर आ रहा है। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि अवाम किस हद तक अजियत का शिकार है कि उनको गैस जो वक्त बताया गया उस वक्त पर भी गैस फराम नहीं की जा रही। इंडस्ट्रीज बंद होने जा रही हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या कहना था वो भी आज के प्रोग्राम में आपको बताया। सुई गैस हुक्काम इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, लेकिन साथ साथ जो परेशानी और अजियत का शिकार कराची शहर की आवाम है, मईशत का पहिया चलाने वाला शहर, वो इस वक्त शदीद गैस के बहरान में मुब्तला है। लालू खेत के हवाले से जो कहा जाता है कि लाहौर से ज्यादा टैक्स फराम करता है, वो भी गैस के लिए रो रहा है। गैस की लाइनों में गैस के बजाय पानी आ रहा है। पानी की लाइनों में तो पानी फराम नहीं किया जा रहा, लेकिन गैस की लाइनों में लोग मोटर लगाकर पानी निकालने पर मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दिखाया कि गैस उनको नहीं मिल रही। एक ही आसरा है, चूल्हा जलाने के लिए या तो लकड़ियां जलाई जा रही हैं या तो LPG ली जा रही है। LPG मिडिल क्लास तबका तो अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन लोअर क्लास तबका LPG 220 रुपए किलो होने के बायस अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये तमाम तर सूरत हाल है। अगर यही संगीनियत इख्तियार कर गई सूरत हाल तो शहरी अपने चूल्हे लेकर सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। हुकूमत को चाहिए इस मामले को संजीदगी से ले। जो वक्त बताया गया है सुबह दोपहर शाम का गैस फराम करने के हवाले से, उन वक्तों पे कम से कम गैस फराम होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।